In the today's lecture, we will discuss the next point of our chapter, that is monophysic liquid dosage form. In the previous lecture, we will discuss the introduction of monophysic liquid dosage form, definition of monophysic liquid dosage form, and then the next is the advantage, then the next is disadvantage. After that, the most important or IMP part of this chapter, that is classification of monophysic liquid dosage form. In that, there is it is divided into two sub points. That first is liquid used for internal administration or internal purpose, and then next is liquid used for external administration. After that, the liquid used for internal administration, there is four examples. First is syrup, then second is mixture, then third is linctuses, the fourth is elixirs. After that, the mixture is the first point or first example of this monophysic liquid dosage form for internal administration. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं आज के लेक्चर में मिक्सचर क्या होता है. इसके देन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सिरप्स, elixirs and linctuses. Okay, now we discuss the mixture of monophysic liquid dosage form. In this chapter, monophysic liquid dosage form, we have to discuss the introduction of all these formulation. After that, classification or types of the monophysic liquid dosage form. After that, the formulation, and then the next is storage. Okay, some of the important question is asking in this chapter according to your board MSBT exam. That is, first is write in brief about suspension containing precipitate forming liquid. This is asking question for 4 or 5 marks or 3 marks. Okay, after that, what are the mixture? Classify different type of mixture. These are also asking for 4 marks. Define mixture for 2 marks. Write the advantages and disadvantages of mixture, 4 marks. Write the procedure for precipitation of indiffusible mixture, that is also 4 marks. Write the procedure for preparation of a diffusible mixture with example. This is also asking for 4 marks. After that, differentiate between diffusible and indiffusible mixture. Okay, for 2 marks. Write the formulation of mixture for 4 marks. Okay, in the today's lecture, we will discuss most IMP point of this chapter, that is mixture. What is mixture? Their formulation, their advantage, their subtype, their disadvantage, their storage, formulation. Okay, all of this we are now going to learn. Okay, in this lecture. After that, the first we have to discuss the definition. What is the definition of mixture? In short, we have to discuss in this lecture. Okay, first is it is liquid preparation. It is liquid preparation. It is included in some points. Okay, meant for oral administration, in which medicament or medicaments dissolved, suspended or dispersed in a suitable vehicle. Okay, liquid mixture is a liquid preparation used for or meant means used for oral administration. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है. लिक्विड प्रिपरेशन है इन विच द मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स आर डिजॉल्व्ड, सस्पेंडेड और डिस्पर्स्ड इन अ सुटेबल व्हीकल. ओके, आर कॉल्ड एज मिक्सचर. आफ्टर दैट, नेक्स्ट इज सम ऑफ द figure is given here. We have to discuss in the previous lecture what is the solution or true solution. Okay, we have to use some of the liquid solvent in the major quantity, that is solvent. After that, in a small quantity we have to add the solute or medicament, that is solute, and it forms solution or true solution or concentrated, or we can say that clear homogeneous mixture. We can also called as a true solution or monophysic liquid dosage form. Okay, after that, here is some of the clip is given here. That is we have to type of mixture, that is sugar, sand, salt. In the first image, we have to in a waterize a vehicle in a large quantity. We have to give on water. In that, we have to add the sugar and it form a mixture. Okay, after in the second image, we have to use a vehicle. In that, we have to add the sand and it form a mixture. After that, we have to given a water as a vehicle. In that, we have to add salt and it form a mixture, type of mixture. Okay,
After that we have to go to the our main definition of mixture. Okay, a mixture is a liquid preparation meant for oral administration in which medicament or medicaments are dissolved, suspended or dispersed in a suitable vehicle. Now we have to, this is called as a mixture. Okay, mixture क्या होता है, एक लिक्विड प्रिपरेशन होता है. ऑब्वियसली इसके अंदर ये यूज़ किया जाता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है. इन विच मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स मतलब एक मेडिकामेंट और एक से ज़्यादा मेडिकामेंट हम इसके अंदर ऐड करते हैं, डिजोल्व करते हैं और डिस्पर्स्ड करते हैं इन वन ऑफ द सुटेबल व्हीकल. वी हैव टू गिवन वाटर एज अ व्हीकल फॉर इन विच वी हैव टू एडेड द मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स. Okay, this is called as a mixture. After that, this is the example of monophysic liquid dosage form used for internal administration. Okay, this mixture is used for internal administration. That is other example is one of these mixture we have to study in this lecture. After that, next is syrup, then linked acids, then elixirs. All of these are used for monophysic liquid dosage form for internal administration. After that, the next is next classification, that is monophysic liquid dosage form used for external administration such as lotion, liniment, douches. Okay, all of these are used for external administration or external application. In mixture is used for internal administration. Okay, we have to learn the definition of mixture. After that, some of the disadvantage or advantage of the mixture is given here in this slide. Now you can see these advantages. Let's see one by one all of these advantage of mixture. First is easy to administer. Okay, obviously easy to administer. Second is suitable for insoluble drug. सेकंड इज सुटेबल फॉर इंसोल्यूबल ड्रग. अब इंसोल्यूबल ड्रग से आपको ऐसा लगा कि मिक्सचर एक बनाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर है तो इसके अंदर इंसोल्यूबल ड्रग कैसे आएगा. तो डेफिनेशन क्या थी, फोकस ऑन डेफिनेशन क्या है. मिक्सचर इज अ लिक्विड प्रिपरेशन मींट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इन विच मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स आर डिजॉल्व्ड. एक तो सोल्यूबल हो जाएगा मेडिकामेंट, दूसरा सस्पेंडेड हो जाएगा मतलब पार्टिकल जो हम मेडिकामेंट और जो इंग्रेडिएंट और ड्रग जो हम सॉल्यूशन में डालते हैं वो सस्पेंड किया जाएगा मतलब वो पार्टिकल उसके अंदर हमको दिखेंगे, विजिबल होंगे, हमको सीन होंगे वो पार्टिकल, तो उसे क्या बोलेंगे, सस्पेंडेड. और डिस्पर्स्ड मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर हमको पार्टिकल जो हमारा मेडिकामेंट है इजीली हम उसको देख पाते हैं. तो वही मिक्सचर का एक डेफिनेशन ही ये है कि एक लिक्विड प्रिपरेशन है, उसके अंदर ओरली यूज़ होता है, उसके अंदर हम मेडिकामेंट जो भी मेडिकामेंट्स है उसके अंदर एक तो डिजोल्व करते हैं, एक तो सस्पेंड करते हैं. सस्पेंड करना मतलब और डिस्पर्स करना मतलब जो मेडिकामेंट है उसके अंदर पूरा सा इजीली सोल्यूबल नहीं होता, उसके पार्टिकल्स जो रहते हैं हमको विजिबली हमको दिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, मिक्सचर ऐसे बोलते हैं. तो सुटेबल फॉर इंसोल्यूबल जो भी हमारा ड्रग इंसोल्यूबल है उसके लिए भी ये मिक्सचर क्या है, सुटेबल है. देन नेक्स्ट इज सुटेबल फॉर इमिसिबल ड्रग. जो ड्रग मिसिबल नहीं है, मिसिबल मतलब इजीली डिजोल्व होते हैं उसे मिसिबल बोलते हैं, और इजीली डिजोल्व नहीं होते व्हीकल के अंदर तो उसे इमिसिबल बोलते हैं. इसके लिए भी ये मिक्सचर जो रहता है, मिक्सचर जो हम बनाते हैं व्हीकल के अंदर और वाटर का यूज़ करके जो मिक्सचर बनाते हैं उसके लिए भी सुटेबल फॉर इमिसिबल ड्रग के लिए भी सुटेबल है. इंसोल्यूबल ड्रग के भी, इंसोल्यूबल जो ड्रग होते हैं उसके लिए भी सुटेबल है, इमिसिबल ड्रग के लिए भी सुटेबल है. एंड देन नेक्स्ट इज द बायो अवेलेबिलिटी इज मोर कंपेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म. जैसे कि मैंने मैंने बोला था कि बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या, जो टैबलेट हम लेते हैं उसका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर कितना होता है कॉन्सेंट्रेशन, उसका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग कितना होता है, मतलब कितने रेट से वो जो ड्रग हमने ले रहे हैं, जो टैबलेट हम लेते हैं कितने रेट से हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब होती है, उसका अमाउंट कितना लगता है, उसे बायो अवेलेबिलिटी ऐसे बोलेंगे. तो द बायो अवेलेबिलिटी इज मोर कंपेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म. जैसे कि सॉलिड डोसेज फॉर्म से ज़्यादा इस मिक्सचर की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट एंड अमाउंट कितने रेट से वो जो हम मिक्सचर लेते हैं कितने रेट से बॉडी के अंदर जाता है
और वो उसका अमाउंट कितने अमाउंट में कितने रेट से बॉडी के अंदर, और ब्लड के बॉडी के हमारे ब्लड के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी बोलेंगे। तो द बायो अवेलेबिलिटी इज मोर कंपेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म से ज़्यादा मिक्सचर की यानी कि मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये एक उसका एडवांटेजेस है। देन नेक्स्ट इज यूज्ड फॉर ड्रग कॉजिंग स्टमक पेन। ये जो मिक्सचर होता है ये प्रिपरेशन हम स्टमक पेन के लिए भी यूज़ करते हैं। ये उसके क्या बोलेंगे, एक एडवांटेजेस बोलेंगे। आप देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। लेस सोल्यूबल देन सॉलिड डोसेज फॉर्म। इन्होंने बताया है कि लेस सोल्यूबल देन सॉलिड डोसेज फॉर्म, जैसा कि जो भी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं मतलब क्या टैबलेट वो होते हैं, जैसा भी हम उसको इंटेक करते हैं तो वो इजीली डिजोल्व होते हैं। तो ये लेस सोल्यूबल है, ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। इनकम्पैटिबिलिटीज़, इसके अंदर इनकम्पैटिबिलिटी भी फॉर्म हो सकती है, जैसा कि हमने इनकम्पैटिबिलिटी देखे थे प्रीवियस लेक्चर में कि क्या था कि कुछ लेक्चर पहले हमने देखे थे इनकम्पैटिबिलिटी चैप्टर पूरा हमने स्टडी कर लिया था कि क्या होता है इनकम्पैटिबिलिटी। और इनकम्पैटिबिलिटी के ये 3 टाइप थे, फिजिकल, केमिकल और क्या था, थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी था। तो उससे हम इनकम्पैटिबिलिटी को कैसे ओवरकम करेंगे, करेक्ट मेथड क्या है इनकम्पैटिबिलिटी की, वो हमने स्टडी कर लिए थे। तो ये जो मिक्सचर होता है इसके अंदर इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म होती है, मतलब यानी कि उसका कलर चेंज होना, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, जैसे कि फिजिकल मतलब कलर चेंज होना, ऑर्डर चेंज होना, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी उसे बोलेंगे। देन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या, केमिकल इंटरेक्शन होता है और ड्रग के अंदर और ड्रग और सॉल्यूशन के अंदर केमिकल इंटरेक्शन होता है। देन नेक्स्ट उसे बोलेंगे थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या, कि जो हमारा थेरेपेटिक जो इफेक्ट होता है वो शो नहीं होता, थेरेपेटिक जो रिस्पॉन्स बॉडी में होना चाहिए वो नहीं होता, तो एक ऑकर हो जाता है इस मिक्सचर के अंदर, वो एक इसका डिसएडवांटेजेस बोलेंगे हम। देन स्टेबिलिटी इसकी कम है। देन उसके बाद एक्सपेंसिव है। देन बल्की टू कैरी, बल्की है ये क्या थे सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दैट मिक्सचर। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा आज के इन स्लाइड में। डेफिनेशन देख ली हमने, उसके बाद डेफिनेशन देख ली हमने, सॉल्यूशन देखा था, उसके बाद हमने क्वेश्चन देख लिए थे, कौन से क्वेश्चन आईएमपी है, डेफिनेशन देखी थी, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, टाइप्स देखे थे हमने मिक्सचर के, ये डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन ऐसी है, उसके कुछ एडवांटेजेस देख लिए थे हमने, इसके बाद डिसएडवांटेजेस देख लिए हमने। उसके बाद अब जो मेन हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन, उसकी तरफ चलते हैं हम। मिक्सचर के 5 टाइप हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट इज, जैसा कि हमने मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में एक हमने देखा था, एक लिक्विड यूज्ड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके सब 4 एग्जाम्पल और फॉर्मुलेशन थे। एक मिक्सचर है, दूसरा सिरप है, देन इलिक्सर है, देन लिंक्टसेस, उसमें लिंक्टसेस। उसके बाद हमने आज के लेक्चर में क्या स्टडी कर रहे हैं, मिक्सचर स्टडी कर रहे हैं। मिक्सचर क्या होता है, एक लिक्विड प्रिपरेशन है विच इज़ यूज्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड विच कंटेन मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स। ओके, and this solution is dispersed in a suitable vehicle. We can say that a mixture. After that, the main point of this mixture is classification. There are 5 types of mixture. First is simple mixture containing soluble substances. Second is mixture containing diffusible solids. Third is mixture containing indiffusible solids. Fourth is mixture containing precipitate forming liquids. Fifth is mixture containing slightly soluble liquids. Okay, let's see one by one all of these classification or sub point of mixture. First is simple mixture. ओके, अब सिंपल मिक्सचर क्या होता है वो स्टडी कर लेते हैं हम। इट कंटेन्स ओनली सिंपल मिक्सचर। ओके, एज द नेम इंडिकेट्स, सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सोल्यूबल सब्सटेंसेस, यानी कि जो भी ड्रग और मेडिकामेंट्स उस सॉल्यूशन के अंदर, उस व्हीकल के अंदर सोल्यूबल है तो उसे क्या बोलेंगे, सिंपल मिक्सचर। ओके, सिंपल मिक्सचर इट कंटेन्स ओनली सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स। सिंपल मिक्सचर के अंदर ओनली सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर सकते हैं, उसे सिंपल मिक्सचर बोलेंगे। मतलब कोई हमने एक वाटर एज अ व्हीकल लिया, उसके अंदर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट ही हम डालते हैं तो उसे सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सोल्यूबल सब्सटेंसेस वी कैन से दैट। आफ्टर दैट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय
true solution. True solution means what? A clear homogeneous mixture called as true solution. After that, it is a clear homogeneous mixture. Example, carminative mixture, expectorant mixture, all of these are simple mixture. After that, the simple mixture method of dispensing. क्या मेथड है सिंपल मिक्सचर की, कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं, फॉर्मुलेशन कैसे बनाते हैं, उसकी मेथड है डिस्पेंस करने की सिंपल मिक्सचर की. सो लेट्स सी द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग सिंपल मिक्सचर. फर्स्ट, डिजॉल्व सॉलिड इन 3/4 व्हीकल. 3/4 पार्ट में हमको व्हीकल लेना है, उसके अंदर डिजॉल्व करना है हमको. अब यहाँ पर क्या बताया है कि मेथड के अंदर डिजॉल्व सॉलिड इन 3/4 व्हीकल. मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे कि मैंने 400 ml वाटर लिया है. 100 ml वाटर है मेरा प्रिपेयर करने के लिए, फॉर्मुलेशन के लिए 100 ml वाटर मुझे लेना है. लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है, उस 100 ml व्हीकल और वाटर में से मुझे 75 3/4 मीन्स व्हाट 75% और 75 ml मैंने वाटर लेना है और उसके अंदर सॉलिड इंग्रेडिएंट ऐड करना है. ओके, समझ में आता है. 3/4 मीन्स व्हाट 100 ml में से 75 ml मैंने वाटर लेना है और उसके अंदर सॉलिड जो मेरा सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट जो है मेडिकामेंट है उसके अंदर मुझे ऐड करना है. डिजॉल्व सॉलिड इन 3/4 व्हीकल. एग्जामाइन द सॉल्यूशन बाय होल्डिंग अगेंस्ट लाइट. वो सॉल्यूशन जो मैंने प्रिपेयर किया है, किसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, जो कि मैंने 75 ml वाटर लिया है, उसके अंदर मेरा ड्रग जो है एक्टिव मेडिकामेंट है और ड्रग जो है मैंने उसके अंदर ऐड किया है. अब वो सॉल्यूशन है होल्ड करना है मुझे लाइट के सामने. लाइट जो होती है, लाइट के सामने मुझे उसको देखना है, विजिबल करना है लाइट के सामने. फिल्टर इफ एनी फॉरेन पार्टिकल्स फाइन. अगर उसके अंदर कोई फाइन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल मतलब कोई डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, अगर मुझे कुछ उसके अंदर विजिबल होता है, कुछ मुझे उसके अंदर दिखता है लाइट के सामने रखने के बाद, कुछ उसके अंदर डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, तो उसको फिल्टर कर लेना है. साथ ही उसके बाद क्या करने का है, ऐड अदर इंग्रेडिएंट्स. उसके बाद जो भी मेरे फॉर्मुलेशन के अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो उसके अंदर ऐड करना है मुझे. उसके बाद क्या करेंगे, ऐड मोर व्हीकल टू प्रोड्यूस फाइनल वॉल्यूम. अब मैंने 75 ml प्रिपेयर किया था, उसके अंदर मेरा एक्टिव मेडिकामेंट ऐड किया था. उसके बाद जो सेकंड स्टेप थी, लाइट के सामने मुझे होल्ड करना था. अगर कोई उसकी थर्ड स्टेप क्या थी, एनी फाइन डस्ट पार्टिकल उसके अंदर सीन अगर विजिबल होते हैं तो मुझे उसके बाद उसे फिल्टर करना है. उसके बाद जो रिमेनिंग इंग्रेडिएंट है वो उसके अंदर ऐड करना है. उसके बाद क्या करना है, जो 25 ml बाकी है, 100 ml में से 75 लिया था, अब 25 ml बाकी था, 25 ml मैंने उसके अंदर ऐड करना है. फॉर व्हाट पर्पस, टू प्रोड्यूस फाइनल वॉल्यूम. वॉल्यूम मेकअप करने के लिए 25 ml जो बाकी था मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया. उसके बाद क्या है, फिल इन बॉटल एंड लेबल. बॉटल में मेरा फॉर्मुलेशन फिल करना है और उसको लेबल करना है. देन नेक्स्ट इज कॉर्क इट एंड क्लीन बॉटल. जो ऊपर का टैप होती है, टैप नहीं बोलेंगे उसको, सॉरी कैप बोलेंगे. ऊपर की जो कैप है, कैप अच्छे से लगानी है, बॉटल क्लीन करनी है, अच्छे से कैप लगानी है उसे. देन नेक्स्ट इज अटैच लेबल, रैप बॉटल एंड डिस्पेंस. बॉटल को लेबल अच्छे से रैप करना है और उसको डिस्पेंस करना है. ओके, समझ में आती है. सिंपल मेथड है. डिजॉल्व सॉलिड in 3/4 vehicle. Examine the solution by holding against light. Filter if any foreign particle finds. Add other ingredients. Add more vehicle to produce final volume. Fill in bottle and label. Cork it and clean bottle. Attach label. Wrap bottle and dispense. This is the simple method for simple mixture containing soluble substances. Okay. Then next देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं उसका. RX means what? RX means what? You take. आफ्टर दैट एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंपल मिक्सचर का. क्या एग्जाम्पल है, फेरिक अमोनियम क्लोराइड 2 ड्रैकम्स, क्लोरोफॉर्म वाटर 1 फ्लूइड वंस. डायरेक्शन 1 tablespoonful टू बी टेकन 3 times आफ्टर मील. अब 2 ड्रैकम 1 फ्लूइड वंस मतलब क्या है, ये मेट्रिक सिस्टम और एम्पेरिकल सिस्टम में होता है. 2 ड्रैकम मतलब क्या और 2 ड्रैकम मतलब कितना ml होता है. आपने अगर नोट्स निकाले होंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा. ओके. और 1 फ्लूइड वंस मतलब क्या है, मैंने सब बताया था आपको, इसके पीपीटी पे भी दी थी मैंने आपको, उसके नोट्स भी आपने निकाले होंगे, पीडीएफ ने आप में रेफर करा होगा तो आपको समझ में आएगा.
टू ड्राई का मतलब कितना होता है, वन फ्लूइड वंस मतलब कितना होता है, ये आपको स्टडी करना है, आपने खुद स्टडी करना है तब समझ में आएगा आपको। मैंने तो आपको बता दिया, आपने खुद से फाइंड आउट करना है, नोट्स निकालेंगे तो समझ में आएगा आपको। देन उसके बाद क्या बोलेंगे इसके अंदर, डायरेक्शन बताए गए। डायरेक्शन कैसी है, 1 टेबल स्पून फुल टू बी टेकन 3 टाइम्स आफ्टर मील। खाने के बाद 1 टेबल स्पून फुल लेना है हमको दिन में 3 दफ़ा। उसके बाद मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, सिंपल मिक्सचर मेथड, सिंपल मिक्सचर की मेथड है, उससे डिस्पेंस किया जाता है ये। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। RX मीन्स यू टेक पोटेशियम ब्रोमेट 4 ग्राम, tincture of Naxomica 4 ml, chloroform water add up to 90 ml. Okay, direction 1 tablespoon to be taken 3 times after meal. मेथड है, डिस्पेंस करने की मेथड है, जैसे सिंपल मिक्सचर की मेथड हमने देख ली थी, वही मेथड है यहाँ पर फॉलो करनी है आपको। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जब कभी भी राइट ए नोट ऑन मिक्सचर होगा, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, उसके एडवांटेज, थोड़े से उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके कितने मेथड है वो, और जो पर्टिकुलर अगर मेथड पूछी तो उसके बारे में लिखना। नहीं तो क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा क्लासीफाई करेंगे, और एक एग्जांपल लिखेंगे सिंपल मिक्सचर का, और सिंपल मिक्सचर के बारे में पूछेंगे तो पूरा उसका मेथड डिस्कस करना है, आपको लिखना है। नहीं तो आपने जो एग्जांपल होता है सिंपल मिक्सचर, और उसका जो एग्जांपल होता है, 1-2 एग्जांपल है, डायरेक्शन है, उसको आपने एग्जाम में लिखना ही लिखना है। कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क 4 मार्क लिए, तो उसके अंदर आपसे उसका रिलेटेड एग्जांपल लिखना है, उसकी डायरेक्शन लिखना है, उसका यूज़ लिखना है, तभी आपको 4 आउट ऑफ 3 and 3.5 मार्क्स मिलेगा आपको। ओके, फर्स्ट से देख लेते हैं हमने कहाँ थे हम, वहाँ से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने मिक्सचर स्टार्ट किया है। डेफिनेशन उसकी, मिक्सचर इज अ लिक्विड प्रिपरेशन मीन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इन विच मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स आर डिजॉल्व्ड, सस्पेंडेड और डिस्पर्स्ड इन अ सुटेबल व्हीकल। आफ्टर दैट एडवांटेज, इजी टू एडमिनिस्टर, सुटेबल फॉर insoluble drug, suitable for immiscible drug. The bioavailability is more compared to solid dosage form, used for drug causing stomach pain. Disadvantage, less soluble than solid dosage form, incompatibilities occurs, instability, then expensive, bulky to carry. After that, classification, simple mixture containing soluble substances, mixture containing diffusible solids, mixture containing indiffusible solids, mixture containing precipitate forming liquids, mixture containing slightly soluble liquid. In this lecture we have to discuss or learn the simple mixture containing soluble substances. Simple mixture, it contains only soluble ingredients, it is represented by true solution, it is a clear homogeneous mixture. Example, carminative mixture, expectorant mixture. After that, the simple mixture, method of dispensing. After that, the example, direction, method of dispensing. Second example, डायरेक्शन एंड मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग। ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। साइड बाय साइड आपने नोट्स निकालना ही निकालना है। ओके, थैंक यू।